हेलो स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये भी लीगल मैटर की है, एक्सरसाइज नंबर 39 और इसमें 83 वर्ड्स पर मिनट की है। ये 5.15 मिनट्स की 429 वर्ड्स हैं और शुरू में डिक्टेशन है और बाद में जो है आउटलाइंस एज यूजुअल मैंने दी है। और आउटलाइंस मैंने रिपीट नहीं करी, जो मैंने पहले एक्सरसाइज में कवर की हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मैंने रिपीट नहीं करी, वो आप वहाँ से देखिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट 27th का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रेफरेबली इसकी ट्रांसक्रिप्शन ना करें, बट हाँ इसके वर्ड्स ज़रूर देख लें। अगर उनको कुछ इसमें नए वर्ड मिलते हैं, नए वर्ड्स देख लें और उसकी प्रैक्टिस भी कर लें अच्छी तरह से। और ट्रांसक्रिप्शन मत करें, सीन अगर करना चाहें तो प्रैक्टिस करने के बाद वो इसको प्ले करके लिख सकते हैं और थोड़ा हाई स्पीड पे भी लिख लें, 80 या 1.25 करके लिख लें, वो उनके लिए बेटर रहेगा। आउटलाइन की अच्छी प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैंने कल लाइव में कहा था, ट्रांसक्रिप्शन की बजाय अगर आप रिवीजन करेंगे आउटलाइंस का, फ्रेजेस का, लीगल वर्ड्स का, लैटिन वर्ड्स का, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और अब मैं शुरू करता हूँ। Thank you. Please get ready for a dictation of exercise number 39 from the legal material. 5 seconds. Start. The claim of each of the decree holders in the two executions and the petitioner in the CCP in these three matters taken up together is for the monies earlier in the bank account of Messrs. Meetco London Limited with Bombay branch of Bank of Baroda. Respondents alleged contemners in the CCP. Stop. The two decree holders and the petitioner in the CCP claim preference to the said monies in satisfaction of their respective claims against Meetco. Stop. What falls for adjudication is inter alia the priority of their respective claims and the effect of attachment before judgment, and axiomatically whether the same has any preference over attachment and or payment in execution. Stop. Proceedings chronologically. The Special Organizing Committee of the 9th Asian Games 1982 on or about 2nd November 1982 against Meetco, averring that disputes and differences had arisen between them with respect to an agreement containing an arbitration clause and for appointment of the arbitrator. Stop. The suit was accompanied with an application for the relief of attachment before judgment of the amounts held by Meetco in its bank accounts in India and for appointment of a receiver to take charge of the amounts lying in the bank accounts and or for restraining Meetco from operating the said bank accounts. Stop. Wide ex parte order dated 2nd November 1982 in the said suit, the order of attachment before judgment of the amounts lying in the bank accounts of Meetco was made and a receiver was also appointed to take charge of the said amounts, and Meetco was restrained from operating the said bank accounts. The said suit was subsequently disposed of. Wide order dated 4th February 1983 with the appointment of the arbitrators and the counsel for SOC
and Meetco arrived at an arrangement qua interim relief during the pendency of arbitration proceedings. Stop. It was agreed that the amounts lying to the credit of Meetco in the bank shall continue to remain attached before judgment and shall not be operated upon or withdrawn by Meetco, and the said amounts shall be kept by the bank in fixed deposit initially for a period of 1 year, to be renewed for each succeeding period of 1 year till the ultimate conclusion of arbitration proceedings and proceedings arising therefrom, and to be not released except under orders of the court. Stop. Accordingly, the receiver earlier appointed was discharged, though attachment before judgment was directed to continue. Stop. A direction was also given to the bank to convert the amount in fixed deposit as agreed, and the amounts were ordered to be held subject to further orders in the suit. Stop. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी आउटलाइन एक्सरसाइज 39 की। सबसे पहले है होल्डर। होल को आपने डबल करना है और क्लियरली डबल करिएगा, नहीं तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है एग्जीक्यूशंस। एग्जीक्यूशंस में जैसे एग्जीक्यूटिव में वी ऊपर जाता है, एग्जीक्यूशंस में शन नीचे जाता है, और क्योंकि प्लूरल में है आप एस प्रॉपरली दिखाइएगा। उसके बाद टेकन अप। टेकन अप जो है उस इकट्ठा लिखा जा सकता है, और फिर भी अगर किसी को है तो आप पी से पहले वॉवल लगा सकता है अप का सेकंड प्लेस पे। उसके बाद वर्ड आया था मैसर्स मी टू, तो मैसर्स का MSRS और मी टू भी आप लिख सकते हैं, और इनके नीचे आप डबल टिक लगा सकते हैं क्योंकि ये नाम है कंपनी का। मैसर्स मी टू लंदन लिमिटेड, लंदन और लिमिटेड, ये इनके भी सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। बॉम्बे, बॉम्बे भी मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद वर्ड है कंटेमनर्स। कंटेम्प्ट से कंटेमनर्स बनता है। जो कंटेम्प्ट करते हैं कोर्ट की, अवहेलना करते हैं, किसी ऑर्डर को नहीं मानते, कंटेम्प्ट जो करते हैं उसको कंटेमनर बोला जाता है। उसके स्पेलिंग देख लीजिए, CONTEM, पी नहीं आता उसमें, CONTEMNER, कंटेमनर। तो यहाँ प्लूरल में है कंटेमनर्स। उसके बाद वर्ड आया है प्रेफरेंस, मैंने दिखाया आपको, और उसके बाद मैंने प्रेफर्स लिखा है। प्रेफर्स में एस ऊपर जाएगा, प्रेफरेंस में NS नीचे बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप हुक का। उसके बाद है वर्ड एजुडिकेशन। एजुडिकेशन में D साइलेंट है, तो J को हाफ करेंगे, केशन, एजुडिकेशन है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं लाइन के। उसके बाद है इंटर एलिया। इंटर एलिया इकट्ठा कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उसके नीचे कोई, नहीं तो इंडस्ट्रियल या कोई और आप लिखते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इंटर एलिया है तो इसके नीचे मैं तो डबल टिक लगाता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये लैटिन वर्ड है। उसके बाद है एक्सियोमेटिकली, एक वर्ड आया था एक्सियोमेटिकली। वैसे लिखने में आसान है, जैसे हम एग्जाम्ट लिखते हैं एग्जामेटिकली, तो एक्सियोमेटिकली है AXIOMATICALLY, और इसका मीनिंग होता है अनआर्ग्यूएबल, जिसको हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह का, एक्सियोमेटिकली। उसके बाद वर्ड आया था क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली जब आया है तो कल के लिए हमने उसको डिसजॉइन किया। क्रोनो
और ई बाद में लगाया मैंने क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद आया गेम्स, एशियन गेम्स। एशियन में SHN और गेम्स। देखिए एशियन गेम्स जो आया इसका A और G दोनों कैपिटल होंगे और इसीलिए मैंने इसको डबल टिक लगाए नीचे। उसके बाद वर्ड आया एवरिंग। एवरिंग, एवरमेंट्स होती हैं, एवर से एवरमेंट्स बनती है और एवरिंग भी होता है वर्ड। तो इस एवरिंग का मतलब है किसी बात को हम जब फर्मली कहते हैं। एवरमेंट्स वर्ड आएगा, अगर याद रखिएगा, आता है लीगल उसमें। और जो भी आदमी फर्म होके किसी चीज़ को कहता है उसको एवरमेंट्स बोलते हैं। और इसमें एवरिंग हुआ है तो VR करके आपने इंग लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट, सिंपल है। उसके बाद है डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए हम D लिखते हैं थ्रू द लाइन, और डिफरेंसेस के लिए आप साथ में S लगा सकते हैं उसके साथ। और उसके बाद मैंने आउटलाइन दी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और कभी कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद है नेक्स्ट है अकम्पनीड, तो K डिस्जॉइन करके PND, अकम्पनीड। नेक्स्ट है अटैचमेंट्स, सिंपल है ये। उसके बाद रिसीवर, ये भी मुश्किल नहीं है रिसीवर, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए हैं इसमें। फिर वर्ड है रिस्ट्रेनिंग, रेस्ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग जब लिखेंगे तो O पहले ज़रूर डालिएगा, और इससे मिलती जुलती कई और लाइन भी होती हैं, नहीं तो पर्टेन भी ऐसे होता है, और थोड़ा अबव द लाइन कर देंगे तो और भी वर्ड बन जाएगा उसमें से। तो जब O पहले डाल देंगे तो ऑपरेटिंग आप ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है एक्स पार्टे, EXPARTE, एक्स पार्टे। एक्स पार्टे के नीचे ही मैंने डबल टिक लगाया है क्योंकि ये भी लैटिन फ्रेज है। एक्स पार्टे मीन्स एक ही पार्टी को सुन के जब कोई चीज़ डिसाइड की जाए तो उसको एक्स पार्टे बोलते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन्ड को ध्यान से लिखना है, और हो आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको, जब पास्ट में होगा तो इसको आप काट सकते हैं बीच में। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स के बाद है क्वा इंटरिम। क्वा, K और W की हुक देंगे बड़ी, क्वा इंटरिम। उसके बाद है पेंडेंसी। पेंडेंसी को पेंडेंसी। इनिशियली, इनिशियल लगा के आप डॉट लगाइए इनिशियली, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं लगाएंगे तो आपकी एक मिस्टेक हो जाएगी। एक तो आप उसको ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, सेंस नहीं लगेगी, और मिस्टेक अलग से होगी। नेक्स्ट वर्ड है रिन्यूड। रिन्यूड को आप चाहें तो काट सकते हैं बीच में, क्योंकि स्पीड पर छोटा बड़ा कभी नहीं बनता, तो आप काटेंगे तो दैट विल बी बेटर। सक्सीडिंग वर्ड है, और लास्ट वर्ड है कन्वर्ट। कन्वर्ट में आपको VR को हाफ करके लिखना है और ऊपर कन लगाना है। लिखना भी ध्यान से है और इसको पढ़ना भी ध्यान से है। दैट्स ऑल, थैंक यू।